First of all, we welcome to sir and we will congratulate sir because they have achieved 229 rank. Okay, so I hope you all will be clap for sir because it's a remarkable achievement they have achieved. Okay, they will guide their experience with you pre मेंस जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी वो पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाले. तो सभी स्टूडेंट के कुछ भी एंड में डाउट रहेंगे वो आप एट द एंड पूछना. सो सर उनका जो भी करियर में जो भी प्री मेंस के लिए जो चैलेंजेस आए थे वो भी शेयर करने वाले. अभी उन्होंने जो रैंक हासिल की है उससे पहले भी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाले आपके साथ. ठीक है, तो स्टार्ट कर दे सेशन सबके. Yeah, so good afternoon everyone. My name is Mukul Khandelwal. I have secured AIR 229 in CSE 2024. My optional was sociology. I have completed my schooling from Kendriya Vidyalaya number 3 Jaipur. After that I have joined NIT in which I have completed my BTech in computer science. After that I have joined Indian Oil in 2018. My dream for UPSC has started in 2021 when Corona hits. And that time I thought that I need to do something for the community, for the society, and I was not able to do much. I was sitting alone in the house, a containment zone था सबका, तो सब अपने अपने हाउस में बैठे थे. We used to see the news. उसके बाद I got motivated that I need to do something else. उसके बाद also the support from the family and my wife जिन्होंने motivate किया कि I need to do much more for the community and society. उसके बाद I have started. So my first attempt was in 2021 in which I have taken optional as a mathematics. So at that time I was not able to clear prelims. The second attempt I was able to clear prelims but I was not able to clear mains. And in third attempt also I was not able to clear mains. After that I introspect that why I am not able to clear the main stage. So I found out that because of the maths I was not able to score very good marks in maths. So after that I thought a lot, and after discussing with many of the people I have decided to change my option to sociology. So this was my fourth attempt in which I have taken sociology as an optional and I have cleared this exam. Okay, this is a brief introduction about myself. So we will start. So have you seen UPSC notification? तो फर्स्ट इंस्टेंस में आपने डाउनलोड करने के बाद आपने क्या देखा? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी नोटिफिकेशन? सिलेबस. तो आप सबको सिलेबस प्रिंट आउट करना है, ठीक है. उसके बाद उसमें आई विल डिस्कस व्हाट यू नीड टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव अ ब्रीफ अबाउट व्हाट इज यूपीएससी. आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट, बट अगेन आई एम टेकिंग अ ब्रीफ थिंग. First of all, UPSC has 3 phases. One will be your prelims, in which there will be 2 papers. Then you have mains, in which there are 9 papers, in which there are 2 compulsory papers. After that, if you clear mains, you will be appearing for interview. These are the 3 stages. Okay. If in prelims you will see there are 2 papers. One is general GS paper, and second is the CSAT paper. In CSAT paper, you need to qualify, and based on your GS marks, the cutoff will be decided and you will be appeared for mains or not. Okay, there are 2 papers. After that, if you see the marking schemes, so your rank will be decided based on your mains marks plus your interview marks. In main marks, each paper consists of 250 marks other than compulsory paper. So there are 2 compulsory papers of 300 marks in which you just need to clear that exam. These marks will not be added in your final list. So the main focus will be on the 5 subject, 4 GS subject, 1 essay subject and 2 optional subjects. So your main focus should be there. Okay. After that there is a interview phase in which interview phase is of 275 marks. Okay. That marks is also added in your final list. These are the optional subject. I think most of you have decided your optional. If you are not decided your optional, the first thing you need to do is decide your optional. So for deciding any optional, what you can do, there are 2 type of optional. First is humanities background optional like sociology, anthropology, PSIR. Another is technical optional like mathematics, civil engineering, mechanical engineering. So based on your interests, you should decide कि आपको कौन सी optional लेनी है. It is very important. I am the example कि मैंने optional थोड़ी गलत ले ली थी, उसके बाद 3 attempt waste हुए, उसके बाद मैंने sociology ली. तो optional के लिए आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा. पहले आपको किसी और पे रिलाई नहीं करना. सिट विथ योर सेल्फ, डाउनलोड करो सिलेबस, डाउनलोड करो उसके PYQs, टॉपर्स के वीडियोस देखो कि उस ऑप्शनल के लिए वो क्या बता रहा है. उस बेसिस पे आप डिसाइड करो कि वो ऑप्शन आपके लिए अच्छी है या नहीं है. उसके बाद यू कैन कॉन्टेक्ट योर मेंटर और टीचर्स ऑल्सो कि ये 2 ऑप्शन में मेरे को कन्फ्यूजन है,
इसमें से कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए. बट ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो 500 मार्क्स की होती है. तो अगर उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इट्स वेरी हार्ड टू क्लियर दिस एग्जाम. ओके, तो ऑप्शनल आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको रियली इंटरेस्ट हो और जिसमें स्कोर करना भी ईजी हो. तो दोनों आपको देखना है. ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होता है 275 मार्क्स का. उसमें 25 to 40 मिनट्स आपका इंटरव्यू होता है. बेस्ड ऑन दैट इंटरव्यू यू विल गेट मार्क्स. ओके, सो लेट मी फर्स्ट शेयर मेंस स्ट्रेटेजी. आप सबका कोर फोकस क्या होना चाहिए? प्रीलिम्स क्लियर करना थोड़ी है. सबका क्या क्लियर करना है? एग्जाम क्लियर करना. एग्जाम क्लियर. तो एग्जाम की जो लिस्ट निकलती है वो किस बेसिस पे निकलती है? मेंस एंड इंटरव्यू. इंटरव्यू बाद में होता है, तो पहले क्या आता है? तो सबसे पहले कोर अपना फोकस होना चाहिए मेंस एग्जाम में. प्रीलिम्स विल बी टेकन केयर आफ्टर सम टाइम, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है. आपका प्रीलिम्स होगा मई में होगा नेक्स्ट ईयर. तो अपना मेन फोकस पढ़ाई का क्या होना चाहिए? मेंस. और बोथ आर इंटीग्रेटेड. ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स की एक अलग पढ़ाई कर रहे हो, मेंस की एक अलग पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है. बोथ आर इंटीग्रेटेड. सम टॉपिक्स आर डिफरेंट. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो जैसे हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे स्पेक्ट्रम से, तो वही क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सिमिलरली फॉर पॉलिटी, इफ यू आर रीडिंग एनी नोट्स और लक्ष्मीकांत, तो आपको वो ही नोट्स आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए भी. तो आपका कोर फोकस ये होना चाहिए कि यू ऑल शुड प्रिपेयर फॉर मेंस. मेंस शुड बी योर फर्स्ट एम. ठीक है, जब प्रीलिम्स पास में आ जाएगा देन यू कैन स्विच टू प्रीलिम्स. की प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, उसमें आपको एक स्किल चाहिए. उसमें भी प्योरली नॉलेज बेस्ड नहीं होगा. इट्स नॉट अबाउट कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. इट्स अबाउट कि प्रैक्टिस और स्किल भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी. जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते, किसी को नहीं आते प्रीलिम्स में. 50 to 60% लोगों को 50 to 60% क्वेश्चन आते हैं लोगों को. लेकिन अदर देन 40% है ना, लोग अपने स्किल से ही टिक करते हैं. जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आई थिंक कोरिलेट करता हूँ ऑप्शंस को कि ये ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये ऑप्शंस का यहाँ लिंक हो सकता है, उस बेसिस पे मैं क्लिक करता है. ठीक है, तो वो स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको 2 to 3 मंथ्स का टाइम चाहिए होता है. ठीक है, अब मेंस की बात करते हैं. मेंस इज अ जीएस स्ट्रैटेजी. जीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, ये एक जनरल स्टडी है. ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि नो रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशलाइजेशन. तो आपको ये बिल्कुल इशू नहीं होना चाहिए कि कोई अगर लॉ से बैकग्राउंड से आया तो उसकी जीएस में अच्छे मार्क्स आएंगे. सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड से आया तो उसके अच्छे मार्क्स आएंगे जीएस में, ऐसा कुछ नहीं है. जीएस में ओनली आपको ये करना है, आपका जो माइंड है ना वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए. दैट मीन्स अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, जैसे आर्टिकल 21 के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या क्या लिखना है उसमें, वो आपके पास होनी चाहिए. डिफरेंट डायमेंशन. उसके अलावा कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट केसेस हो सकता है. उसके अलावा क्या आपका इंट्रोडक्शन होगा, क्या आपका कंक्लूजन होगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको सब कुछ आता है ना, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो इश्यू होता है प्रेजेंटेशन का. कि आपका जो फ्लो बनना है ना, आप इंट्रो में क्या लिख रहे हो, कंक्लूजन में क्या लिख रहे हो और बॉडी पे क्या लिख रहे हो, वो आपको बहुत एक फ्लो में लिखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, सब कुछ इधर उधर लिख दिया और बाद में आपको पता चला आपके मार्क्स नहीं आए. ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है. तो जीएस इज जनरल स्टडीज. उसमें आपको टेंशन नहीं लेना कि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करनी है. आपको सिर्फ अपना माइंड यूज करना है आंसर लिखते वक्त. ठीक है, कंटेंट सबके पास सिमिलर टाइप का होता है. बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे. नॉर्मल कंटेंट पढ़ो, उस नॉर्मल कंटेंट को आप प्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से करो. दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग गुड मार्क्स. ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट ऐसे. ऐसे कितने मार्क्स का होता है? 250 का होता है. ठीक है, ऐसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हो सब, नहीं भी एडिटोरियल कभी पढ़ा है, स्कूल में तो ऐसे देखे होंगे ना. ये ऐसे थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे ऐसे आपको 1200 वर्ड्स के अराउंड लिखना होता है. ठीक है, इसका स्पेसिफिक ये इन्होंने क्या बोल रखा है, अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइसली. क्रेडिट विल बी गिवन टू इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. तो किसी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत अच्छी इंग्लिश है, लेकिन अगर वो ऑर्डरली प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, मतलब मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, आप भी अगर न्यूज़पेपर या कुछ भी पढ़ते हो, आप देखते हो पहला पैराग्राफ कुछ और बोल रहा है, फिर दूसरा पैराग्राफ कुछ और बोल रहा है, दोनों में लिंकिंग ही नहीं है, फिर तीसरा पता नहीं कहाँ चला गया, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा वो पैराग्राफ. तो यूपीएससी नोटिफिकेशन इज ऑल्सो सेइंग दैट कि आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हो अपने पेपर में, इट शुड बी ऑर्डरली फैशन. एक फ्लो होना चाहिए पूरे ऐसे का, कहीं भी अब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्वायरमेंट कैन कैंडिडेट राइट ऐसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स.
आपको क्या होगा, एक सेक्शन ए होगा एंड सेक्शन बी होगा, दोनों में 4-4 टॉपिक्स होंगे, उसमें से आपको एक ही सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो चेंज हुआ है, पहले है ना सीधे साधे टॉपिक्स आते थे, सिंपल टॉपिक्स, अभी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आते हैं, फिलोसफिकल ऐसे टॉपिक्स आते हैं, उसमें आपको सोचने का बहुत टाइम चाहिए, सोचने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि उसकी डिमांड ही अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सेलेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं कैसे सेलेक्ट करता था, मैं मोस्टली फिलोसफिकल लिखता था, लेकिन इस बार मैंने एक सोशल मीडिया वाला पाया था ऐसे, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स है ना अच्छे से समझ में नहीं आ रहे और बहुत इजी टॉपिक आ गया है ऐसे का, तो चूज दैट, ओके। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में हाई आप बहुत ज़्यादा गेन भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज भी कर सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल टॉपिक में आपके अच्छे अबव एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सोशल मीडिया फियर ऑफ मिसिंग आउट ऐसा टॉपिक था, ठीक है, उस पर मैंने ऐसे लिखा था, और फर्स्ट में सारे ही शायद तक एब्स्ट्रैक्ट थे, उसमें मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा था, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड, एक फिलोसफिकल ऐसे होता है जिसमें कोड दिखा होता है, उसके बेसिस पे आपको उसमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है कि यार ये सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है, ये नेशन से कैसे रिलेटेड है, ये इंटरनेशनल से कैसे रिलेटेड है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होती है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ऐसे मैं कैसे लिखता था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, हर आंसर ऐसे ही होगा आपका, चाहे वो ऐसे हो, चाहे आपका जीएस हो, चाहे आपकी ऑप्शनल है, ठीक है। बट ऐसे में क्या है, 1200 पेज का लिखना है आपको, तो इसमें जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं ना वो डिफरेंट होंगे, जैसे इसमें डिफरेंट अप्रोच होती है, जैसे मैं जब करता था सॉल्व ऐसे, तो डिफरेंट, जैसे एक पेस्टल अप्रोच होती है, पेस्टल आपने सुना है क्या होती है, हाँ हाँ, तो दीज आर डिफरेंट डायमेंशन। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक पैराग्राफ में पॉलिटिकल कर दिया, एक में इकोनॉमिकल कर दिया, एनवायरनमेंट कर दिया, सोसाइटी कर दिया, ऐसे करके। लेकिन ये भी बहुत कॉमन अप्रोच हो गई है, ठीक है, क्योंकि सब ऐसा करके जाएंगे तो फिर मार्क्स तो कम आएंगे, तो आपको इससे भी आगे सोचना है। तो बहुत सारी और भी अप्रोचेस है, लेकिन जस्ट लाइक एक क्रोनोलॉजिकल अप्रोच होती है, जिसमें क्या होता है, जब आप कोई ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल के अराउंड घूमते हो कि इंडिविजुअल बेसिस पे क्या इम्पैक्ट है, उसके बाद आप घूमते हो फैमिली एस्पेक्ट में क्या इशू है, उसके बाद आप सोसाइटी, नेशन, इंटरनेशनल, और ऐसे एक स्टोरी बिल्ड करते हो आप, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द ऐसे सिलेक्शन, ठीक है। तो ट्राई करिए कि जो दो ऐसे लिख रहे हो ना आप, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, वो दोनों डिफरेंट स्ट्रेटेजी से हो, ठीक है। दीज आर माई रिकमेंडेशन, ठीक है। आप और भी स्टडी करके अपना डिसीजन लेना, डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनी टॉपिक, ओके। आफ्टर सेलेक्टिंग दीज टॉपिक्स, उसके बाद एक वैल्यू सिस्टम अप्रोच होती है। जैसे जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं ना, वैल्यू पता है वैल्यूज क्या होती है, एथिक्स का नाम सुना है, उसमें एक फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज टॉपिक है, उसमें एक डिफरेंट वैल्यूज है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन, ठीक है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं ना, वो लिंक होते हैं उन वैल्यूज से, ठीक है। जैसे गांधी जी का कोई कोट दे दिया, तो वो कोट का मीनिंग उस वैल्यू से लिंक होगा। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आपने बॉडी को 7 या 8 पैराग्राफ में डिवाइड किया, तो हर पैराग्राफ को एक वैल्यू से डिनोट कर सकते हो, और उस वैल्यू बेस पे आप उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, उसके नेगेटिव्स भी लिख सकते हो, पॉजिटिव भी लिख सकते हो, और बाद में उसको हैप्पीली एंडिंग करके दूसरी वैल्यूज स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दीज आर डिफरेंट। अब ये आप सीखोगे, ऑनलाइन सीखोगे या कोचिंग में सीखोगे कि कैसे आप ऐसे लिख सकते हो, बट सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा ऐसे लिखने से पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, सबको पता है ये, नहीं पता होगा शायद, तो कि अभी आप ऑल यू आर गोइंग टू अपियर फॉर 26, राइट, 26 और 27। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी ऐसे टॉपिक चूज कर रहे हैं, उसके बाद एक पेपर लिखना है, एक पेपर लेना है, उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब ऐसे आपने पढ़ा, उस ऐसे पढ़ते ही आपको क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं कि ये ऐसे गांधी जी के कोट से लिंक हो सकता है, ये ऐसे सोसाइटी से कैसे लिंक हो सकता है, ऐसे करके एक रफ शीट है ना, उसका ब्रेनस्टॉर्म करो, ठीक है। उस वो दैट ब्रेनस्टॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे में टाइम रहता है सबके पास, क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर है, उसमें टाइम रहता है आपके पास आराम से, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। लेकिन आपने अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की और डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया पेपर लिखना, तो आप लास्ट में जाते जाएंगे कि सेम ही पॉइंट्स लिख रहे हो आप, जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा वही आप लास्ट पैराग्राफ में लिख रहे हो, तो दैट शुड नॉट बी योर केस। तो आपको पहले से ही प्लान करना है, 15 to 20 मिनट्स आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग दिन में देना है। और माई रिकमेंडेशन कि जब आपके ऐसे क्लासेस हो, कुछ भी क्लासेस हो, तो आप PYQs प्रिंट आउट कराओ, ठीक है, ऐसे के, उसमें आप खुद से ब्रेनस्टॉर्म करो, और जहाँ कन्फ्यूजन हो किसी की हेल्प हो, ओके। दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर ऐसे, ठीक है। सो देन GS1 कंसिस्ट ऑफ
ठीक है, तो सोसाइटी है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप पहले से कर सकते हो और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, उसमें आपको स्मार्ट वर्क करना है। जैसे कि सोसाइटी है, सोसाइटी का एक क्लियर सिलेबस दे रखा है कि पैट्रियार्की, वॉट एवर इट इज़, फैमिली, जॉइंट फैमिली, ये सब दे रखा है आपको। तो आपको क्या करना है, उस पर शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या आप ईयरली कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, उसमें से जो शॉर्ट टाइप का कंटेंट होता है ना, कि आपने डेटा डाल दिया, एक केस स्टडी डाल दिया, वो आपने अपने नोट्स में ही ऐड कर लिया, ठीक है। ऐसे आपका सोसाइटी कवर हो जाएगा। तो सोसाइटी में आपको यही नहीं कि कोई बड़ी बुक पढ़नी है, छोटी बुक पढ़नी है, कुछ नहीं। आप अपने हिसाब से रिसर्च करो इंटरनेट पे कहीं पे भी, वहाँ से आप हर टॉपिक का एक कंटेंट निकालो। उस कंटेंट, डिजिटल कंटेंट या फिजिकल कंटेंट, इट्स अप टू यू। उस कंटेंट को निकालने के बाद जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, वो ट्राई टू ऐड दैट इन दिस कंटेंट, ओके। फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई हैव रेफर्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज़ वेरी गुड, मेंस एंड प्रीलिम्स में मेरे को हेल्प किया था, तो उसके लिए आप वो रिफ़र कर सकते हो। बाकी सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोचिंग का मटेरियल भी रिफ़र कर सकते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैंने इंटरनेट का हाईली यूज़ किया था, ठीक है। मैंने फाउंडेशन की कोचिंग कहीं से नहीं की थी, ठीक है। तो मैंने इंटरनेट, क्योंकि मेरे पास कम टाइम था, वर्किंग प्रोफेशनल, तो मैंने इंटरनेट का काफ़ी यूज़ किया था और एआई का भी काफ़ी यूज़ किया था, चैट जीपीटी एंड ऐसे टूल। तो अभी बहुत अच्छे टूल्स आ गए हैं, तो यूज़ योर ब्रेन टू स्टडी स्मार्ट, ठीक है। वही सेम पैटर्न की आप पूरा फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो, फिर बाद में वापस रिवाइज, इतनी मोटी मोटी बुक कर रहे हो, फिर वापस रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन देख रहे हो कि क्वेश्चन हो ही नहीं रहा सॉल्व, तो क्या क्या फिर क्या फ़र्क पड़ता है वो सॉल्व करके। तो इट्स बेटर कि आप सिलेबस पे जाओ, दिस इज़ योर गोल्डन वर्ड्स। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यूपीएससी कोचिंग बेसिस पे नहीं बना रहा, कोचिंग के मटेरियल पे पेपर नहीं बना रहा, वो कैसे बना रहा है, सिलेबस के बेस पे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मोस्ट ऑफ द कोचिंग सिलेबस के ही अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन आपको सेल्फ अपना एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा सिलेबस को पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने सिलेबस की प्रिंट आउट डाला है, ये यूपीएससी नोटिफिकेशन की प्रिंट आउट है, ताकि मैं एम्फेसाइज कर सकूं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेक श्योर कि आप सबके सब इसका प्रिंट आउट निकलवा दो। सिलेबस का प्रिंट आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आफ्टर दैट फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें आप स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। मैंने फाउंडेशन कोर्स नहीं ली थी, तो मेरे पास कुछ कंटेंट ज़्यादा था नहीं, तो मैंने क्या किया, कोचिंग की जो FLTs होते हैं ना, फुल लेंथ टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन जो जो आते थे ना, मैं उसको उठा के अपने नोट्स में लिख लेता था, ठीक है। तो उसमें मेरे को थीम पता लग गई कि या तो रशिया की हिस्ट्री पे पूछ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर्स पे पूछ रहे हैं, ऐसे करके कुछ इश्यूज पता लग गए, तो मैंने वो नोट्स बना लिए और उसी से मैं देखे आ गया। तो स्पेशलाइज कोई बुक नहीं पढ़ी मैंने, ठीक है। तो आप भी ऐसी स्मार्ट स्टडी कर सकते हो कि या तो पेपर्स देख सकते हो या कंटेंट देख सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप अपनी नोट्स बनाओ, ठीक है। वो आप डिजिटल भी बना सकते हो, फिजिकल भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने डिजिटल नोट्स बनाए थे, बिकॉज डिजिटल नोट्स में बेनिफिट ये है, एक तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आप रास्ते में जा रहे हो तो भी खोल लिया, आप कहीं घूमने जा रहे हो तो भी खोल लिया। उसके अलावा यू कैन ऐड एनी पॉइंट इन डिजिटल नोट्स। तो आपको लगा यार ये पॉइंट है ना, स्टॉपिंग में जा सकता है, तो आपने जल्दी से डिजिटल टूल, कोई सा भी वन नोट हुआ, एवर नोट हुआ, बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैंने वन नोट यूज़ किया था। तो मैं क्या करता था, मैं जाता था अपने जहाँ भी बॉक्स बना रखा है ना टॉपिक वाइज, वहाँ पे मैं उस कंटेंट को ऐड कर देता था, ठीक है। अदर देन दिस, आर्ट एंड कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप प्रीलिम्स में भी देखोगे, मेंस में भी देखोगे, तो आर्ट एंड कल्चर का एम्फेसिस ज़्यादा बढ़ रहा है और क्वेश्चन बहुत अंदर से आ रहा है। तो जो आर्ट एंड कल्चर की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, IVC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैसे अदर टॉपिक, उसके स्मॉल नोट्स बना लो, ठीक है। जिसके भी आप नोट्स बना रहे हो ना, ऐसे मत करो कि आप बुक ही छाप रहे हो, आपको बुक ही नहीं छापनी, आपको नोट सिर्फ स्पेसिफिक बनाना है, जो भी आप लिखोगे नोट्स में वो सारा आपको पेपर में लिख के आना है। ऐसा नहीं होना चाहिए नोट्स में आपने 10 पेज लिख दिए और पेपर में एक पेज भी नहीं भरा जा रहा। तो इट्स बेटर टू मेक ओनली 1 पेज, ठीक है। से IVC का टॉपिक है, उसमें आपने 1 पेज बना दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ लिख ली और उसी को आपने रेप्लिकेट कर दिया अगर IVC का क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। ज्योग्राफी मैंने PMFIS एक ऑनलाइन बुक्स देता है, वहाँ से मैंने पढ़ी थी, एंड ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल और फॉर मेंस एज वेल, ठीक है, क्योंकि इसका रेलेवेंस बढ़ता जा रहा है और अच्छे खासे क्वेश्चन आता है। इफ़ यू सी, अगर आप देखोगे पैटर्न, तो ज्योग्राफी में से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इस पर आपको खास फोकस देना है, ठीक है, ना आर्ट एंड कल्चर, ओके। जी, फॉर GS2 में क्या क्या आता है,
इसमें अगर आपको स्कोर हाई करना है तो कौन सा टॉपिक आपका सबसे अच्छा होना चाहिए? पॉलिटी गवर्नेंस, ओके, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी, मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ़र करता था। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड कर लो ऑनलाइन, वहाँ पे कुछ भी आता है, जैसे आर्टिकल, कुछ न्यूज़ आई आपके पास, आर्टिकल 21, तो जनरली लोग क्या करते हैं, आर्टिकल 21 जो न्यूज़ में रहता है वही पढ़ लेते हैं, यही करते हैं ना। आप ऐसा मत करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। मतलब मैं जाता था, आर्टिकल 21 देखता था, उसको रीड कर लेता था, तो उसमें आपको और बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको फिर फुल आइडिया हो जाएगा कि आर्टिकल 21 में क्या क्या है, कोई चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। और फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, वो तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही पढ़ना है आपको, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही चीज़ लिखी हुई है, बट कुछ डिटेल नोट्स भी लिखे हुए हैं उसमें, और केसेस भी लिखे हुए हैं। तो क्योंकि अब जब भी आप मेंस का आंसर लिखोगे ना, तो आप सिंपल आंसर नहीं लिख सकते, कि जो भी कंटेंट है उसका भी एक तरीका है। कैसा तरीका है? आपको अपनी सुप्रीम कोर्ट के केसेस लिखने होंगे, उसमें आपको आर्टिकल मेंशन करना पड़ेगा, रीसेंट केसेस भी आपको लिखने पड़ेंगे, कुछ केस स्टडीज होगी तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आप कोई क्वेश्चन आता है और वो आपको लगता है ये आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, और आपको पता है ये 3-4 केसेस हुए हैं, तो आप इजीली जल्दी से वो लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल आंसर्स नहीं लिखने अपन को, नॉर्मल आंसर आप लिखोगे इसमें सेम कंटेंट डाल के, तो आपके 90 नंबर आएंगे, ठीक है। लास्ट ईयर आई स्कोर्ड 117 इन दिस, तो उसमें मेरा यही हुआ था कि मैंने ऐसे लिखा था। लेकिन इस साल है ना, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए थे, तो वो वाली टेक्निक नहीं चली थी ज़्यादा, इसलिए मेरे 106 आए। लेकिन आपको वैसी ही टेक्निक करनी है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट याद होने चाहिए, आर्टिकल्स याद होने चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में ब्रॉड टॉपिक्स दिए हुए हैं, सिलेबस में ही दिए हुए हैं, ये इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस। तो आपको पता है अभी पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का कौन सा इशू सबसे चल रहा है बड़ा? इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये बहुत मेजर इश्यूज है। इट कैन बी आस्क्ड, इट कैन नॉट बी आस्क्ड, क्योंकि थोड़ा वैसा टॉपिक है ना ये, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस वाटर ट्रीटी। तो आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कस करना है। वैसे बांग्लादेश पे क्या ट्रेड होता है, लेकिन जब भी आप न्यूज़पेपर या कंटेंट तैयार करो ना, तो आप कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना आपका, ठीक है। आपको फोकस करना है क्या हमारे टाइज है, ट्रेड टाइज कौन से रहा, ठीक है, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने वहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। डेटा क्या है अपने पास, ठीक है। उसके बाद कौन से डिप्लोमेटिक चैनल्स है, कौन से क्रिटिसिज्म है, क्या नेगेटिव्स है, क्या पॉजिटिव्स है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। पॉलिटिकल डिबेट्स पे नहीं करना, ओके। सोशल जस्टिस ऑल्सो आई यूज टू डू, मैंने सारे सारे नहीं, 2-3 कोचिंग क्लासेस के एफिलिटीज़ निकाल लिए थे, उसमें जो सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस थे उसको मैंने एक जगह रख लिए थे, उससे कंसाइज नोट्स बना लिए थे, और उससे ही मैं देख के गया था, ठीक है। तो मैंने जो बुक्स होती हैं ना, मैंने ओनली लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, उसके अलावा मैंने कोई और बुक नहीं पढ़ी, ओके। उसके अलावा ईयरली कंपाइलेशन में रिफ़र करता था, ठीक है। GS3 में मेरे कम नंबर आते थे, आई डोंट नो क्यों आते थे, क्योंकि इकोनॉमी मेरे को पसंद था और इकोनॉमी अच्छा भी था मेरा। तो इकोनॉमी के लिए आई विल सजेस्ट कि जब भी आप GS3 का पेपर देने जाओगे तो आपके पास एक फैक्ट शीट होनी चाहिए। फैक्ट शीट मतलब आपके पास डेटा होना चाहिए, ठीक है, कि क्या डेटा है, इकोनॉमी कौन से नंबर में है, कितनी बड़ी इकोनॉमी, ठीक है, कौन कौन सी कमिटीज़ थी जिन्होंने रिकमेंडेशन दी, ठीक है। जैसे रेलवे का बहुत अभी इशू चल रहा है, तो रेलवे पे क्वेश्चंस आ गए, तो रेलवे में कौन कौन सी कमिटीज़ थी जिन्होंने अच्छी सी रिकमेंडेशन दी थी। सिमिलरली SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें कौन कौन सी कमिटीज़ थी और उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे, आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, जैसे आप एक नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, उसमें आपने डेफिनेशन लिख दी, दैट इज़ अ नॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है। एक अलग इंट्रोडक्शन में आपने फर्स्ट में ही डेटा लिख दिया उसका, तो जो चेक कर रहा होगा उसकी आंखें थोड़ी तो खुलेगी कि यार इसने तो कंटेंट अच्छा लिखा है, तो जो बॉडी तक जाएगा उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा कि आपने अच्छा लिखा है। और कंक्लूजन में भी आपने कमिटी लिख दी, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा ही बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंटेंट आता भी है ना, तो कहाँ पे क्या लिखना है उस पर भी आपको फोकस करना है। उसके अलावा ट्राई करो कि जो GS के सब्जेक्ट है ना, उसमें पॉइंट वाइज लिखो, ये मेरा रिकमेंडेशन। पॉइंट वाइज लिखते हैं तो मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, तो वो हेल्प करता है। पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ टॉपर्स पैराग्राफ लिख के भी अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन आई थिंक जब आप पॉइंट लिखते हो ना, तो वो देखता है ना, अच्छा इसने 10 पॉइंट्स लिखे पॉजिटिव, 5 पॉइंट्स लिखे नेगेटिव्स, कंक्लूजन अच्छा लिखा है, तो अच्छे मार्क्स देता है, ठीक है। तो ट्राई करो पॉइंट वाइज लिखना, और पॉइंट वाइज भी ऐसा नहीं कि आप बड़ा बड़ा लिख रहे हो कि एक पॉइंट 4 लाइन में आ रहा है। 1 पॉइंट शुड बी 1 और 2 लाइन, उससे ज़्यादा आपका पॉइंट बनना ही नहीं चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आप लिखो और उस पर सर्कल कर दो,
और ये आपको सीखना ही पड़ेगा। आपको कि मेरे से तो पेपर ख़त्म नहीं हो रहा, डेट यू नीड टू लर्न। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा जिसमें आप पूरा पेपर टाइम पे कंप्लीट करो, और जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना उसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा और सर्कल बनाना पड़ेगा। ओके, इकोनॉमी के लिए आपको फैक्ट शीट मैं तैयार करता था जिसमें हर एक टॉपिक्स के डेटा होते थे, कमिटीज़ होते थे और केस स्टडीज़ होते थे। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डीएम, इसमें मैंने सेम किया था, FLTs वाले पेपर उठाए थे और उसमें जो जो कंटेंट मिला था वो लिख लिया था, बस मैंने इतना ही किया था। बट आई विल नॉट रिकमेंड यू ऑल टू डू दिस, बिकॉज ये मेरा ही स्ट्रैटेजी थी, मेरे पास टाइम कम था। मैंने सोचा मैं स्मार्ट स्टडी कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है तो आप और अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करो डिजास्टर मैनेजमेंट आप अच्छे से करके जाओ, जो जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन GS। कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है इसका फुल फॉर्म? इसमें लोगों के मार्क्स हमेशा हाई आते हैं, मेरे माइन वॉज 131। ठीक है, तो लोग इसमें अच्छा स्कोर करते हैं। जो बाकी के GS है, GS 1, 2 एंड 3, इसमें अगर आप एवरेज निकालोगे ना तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्कोर्स एवरेज मार्क्स ओनली, बहुत हाई नहीं करते। बहुत एक्सेप्शनल होते हैं जो बहुत हाई करते हैं, लेकिन GS में ना बहुत लोग हाई करते हैं और बहुत लोग लो करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और GS 4 में स्कोर करना कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें क्या है, मैं इसमें आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ और वही फॉलो करो, आप अच्छे मार्क्स है नहीं। टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस सिलेबस GS 4। अब इसमें कुछ भी लिखा हुआ है पहले, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का आपके पास कंटेंट होना चाहिए, सिर्फ सिलेबस बेस्ड ही। और जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आप इसमें फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज है, इंटीग्रिटी, ये सब है, तो आप जो आंसर्स आएंगे ना, आंसर्स लिखोगे तो आप रेप्लिकेट कर दो इसी को, कि इंटीग्रिटी यूज़ होनी चाहिए, कंपैशनेट होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे करके। जैसे मैंने कैसे किया था मैं आपको बताता हूँ। जैसे एटीट्यूड है आपका, एक टॉपिक है एटीट्यूड, एटीट्यूड टॉपिक है, यहाँ पे देखो ये रहा, है ना, उसमें क्या लिखा, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन। ठीक है, सेम है ना, तो एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कंटेंट में क्या आता है, स्ट्रक्चर में क्या आता है, फंक्शन में क्या आता है। इन्फ्लुएंस ऑन थॉट एंड बिहेवियर, मॉरल एंड पॉलिटिकल, सोशल इन्फ्लुएंस। तो आपको हर एक टॉपिक की स्मॉल नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और ये सबसे इजी है, GS 4 इज़ वेरी इजी, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत कम है। इट्स जस्ट कि आप वो स्टाइल जैसे सीख जाओगे ना, इसको रेप्लिकेट करने की आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने लग जाओगे। ठीक है, आपको कंटेंट ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि टॉपिक वाइज करना है, जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है ना वही करना है। ठीक है, जैसे एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे इंटीग्रिटी एक वैल्यू है। ठीक है, तो इंटीग्रिटी वैल्यू में मोस्टली किसी भी आंसर्स को करने के लिए इस एथिक्स में व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एग्जाम्पल्स का यूज़ करना। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल्स यूज़ करने, उसके अलावा फिलोसफीज़ भी यूज़ करनी है आपको। ठीक है, तो हर एक वैल्यूज़ की बहुत सारी फिलोसफीज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया इंटीग्रिटी की क्या क्या फिलोसफीज़ हो सकती है, तो ये मैंने इंटीग्रिटी की फिलोसफीज़ लिखी। ठीक है, तो कोई भी अगर क्वेश्चन आया, मुझे लगा यार ये इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, ठीक है, तो मैं इसमें से एक डाल दूंगा। ठीक है, तो ये रटना है आपको, ऐसे नहीं कि आपको अपने आप आ जाएगा, आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और इसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली द एग्जाम्पल्स, कि इंटीग्रिटी के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकता है, कुछ वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और कुछ सिविल सर्विस सर्वेंट्स वाला एग्जाम्पल हो सकता है। तो उस वैल्यूज़ के आपको ये सब नोट डाउन करने पड़ेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चंस आएगा, आपके ट्रिगर होना चाहिए कि इसमें मेरे को 2 एग्जाम्पल डालना है। ठीक है, और वो 2 एग्जाम्पल कैसे डालोगे आप, उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करोगे कि किस वैल्यू को डिनोट कर रहा है वो, क्या वो इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, क्या वो कंपैशन से रिलेटेड है, क्या वो ऑनेस्टी से रिलेटेड है। ऑनेस्टी से रिलेटेड है तो एकदम से ट्रिगर होना चाहिए, यार ये 2 एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, ये इसमें बढ़ा दो। ठीक है, तो वो कंटेंट आपको पहले से ही रटना है। ठीक है, उसके लिए वेट नहीं करना, क्योंकि बहुत ईजी है ये और बहुत हाई स्कोरिंग है। इसमें 141 145 भी लाता है लोग, और कंटेंट क्या है, बहुत कम कंटेंट है। ठीक है, इसका सेकंड टाइप होता है केस स्टडीज। ठीक है, केस स्टडीज पता है, देखा है कितने मार्क्स की होती है केस स्टडीज, 20। ठीक है, तो 20 में से कितना स्कोर करना है आपको, 20 करना होगा ना आपको, तो लेकिन आपको ट्राई करना है 12 से ऊपर करना है केस स्टडीज में, और 12 से ऊपर आना बहुत ईजी है। ठीक है, 15 भी मार्क्स आते हैं आप, लेकिन अगर आप डायरेक्टली केस स्टडीज में बिना कुछ पढ़े, ओनली आपने कंटेंट पढ़ लिया लेकिन केस स्टडी सॉल्व नहीं की, कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया,
तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है। तो जब आप पेपर देने जाओ उससे पहले आपके पास 3-4 या 5-6 फ्रेमवर्क होने चाहिए, जैसे कि मैंने बनाए थे। मैंने क्या बनाए थे, जैसे कुछ केस स्टडीज़ हो सकती है जो कि बेस्ड ऑन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज आती है, कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और मेरे पास ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ऐसा कुछ करके आ रहा है, ऐसे केस स्टडीज आती है। तो एग्जांपल देखो, सीनियर ऑफिसर इन फाइनेंस मिनिस्ट्री विथ एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल पॉलिसी डिसीजंस इम्पैक्टिंग हाउसिंग इंडस्ट्री, सुपीरियर आस्क्ड टू डिस्क्लोज टू ए बिल्डर फॉर प्रॉफिट। मतलब सुपीरियर बोल रहा है कि आप है ना इस पॉलिसी को डिस्क्लोज करो और आप सिविल सर्वेंट हो। तो ये किस में आ गया, टाइप 1 केस स्टडी का। सिमिलरली टाइप 2 हो सकती है एम्पैथी वर्सेस ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या हो गया कि ओल्ड डेस्टिट्यूट वुमेन आई आपके पास, लेकिन वो एलिजिबल नहीं थी उस बेनिफिट के लिए, तो आप एम्पैथाइज तो हो उससे कि यार इसकी हेल्प करनी चाहिए, जेन्युइन पर्सन है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी क्या बोलती है, एज पर पॉलिसी वो एलिजिबल ही नहीं है, तो ऐसे कन्फ्लिक्ट्स आ गए। दूसरा हो सकता है मोरलिटी इंटीग्रिटी वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कुछ केस में कि कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि यार ये अगर डील हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट आ सकता है बहुत, हम प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन वो मॉरली इनकरेक्ट होती है। आप सेल सर्वेंट नहीं हो लेकिन आप ऑफिसर हो, उसमें कुछ एक आप डिपार्टमेंट संभालते हो। तो ये 3 टाइप की केस स्टडीज़ हो गई। एग्जाम मैं क्या करता था, एग्जाम से पहले मैं 6-7 टाइप की केस स्टडीज़ बना ली कि यार इस टाइप की आ सकती है। उस टाइप की केस स्टडीज़ के लिए मैंने पहले से ही कंटेंट प्रिपेयर कर लिया कि जैसे कि अच्छा मैंने दिया नहीं, से केस स्टडीज बेस्ड ऑन रोल ऑफ सिविल सर्विस है, तो इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, कौन कौन सी वैल्यूज़ डाल सकता हूँ, क्या क्या। जैसे जनरली GS4 का अगर आपने पेपर देखा होगा तो क्या पूछता है वो केस स्टडी में, बताओ। एथिकल डिलेमास पूछता है वो आपको, ये पूछता है, कोर्स ऑफ एक्शन पूछता है आपसे, 4-5 क्वेश्चन पूछता है। तो एथिकल डिलेमास पूछ रहा है, तो एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में एथिकल डिलेमास कौन कौन से आ सकते हैं, तो ये केस स्टडीज़ में कौन कौन से एथिकल डिलेमास आ सकता है वो पहले से ही प्रिपेयर कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी फिलॉसफीज इससे रिलेटेड हो सकती है, जैसे कांत का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव होता है, ठीक है। आप पढ़ोगे बाद में, टेंशन मत लो, आप सबको याद भी हो जाएगा, तो वो इससे रिलेटेड है। तो जब भी मैं आंसर लिख रहा हूँ मैंने पहले से फाइंड आउट कर लिया कि इस टाइप ऑफ केस स्टडीज़ आएगी, अगर कहीं पे भी मुझे सिविल सर्वेंट का रेफरेंस मिला तो मुझे ये कंटेंट फॉलो करना है और उस कंटेंट के बेस पे मुझे आंसर्स लिखना है, ठीक है। अगर किसी में एम्पैथी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी का इशू होगा तो मेरे पास ये कंटेंट है और इसमें से मुझे आंसर्स लिखना है। तो ये केस स्टडीज़ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहाँ पे केस स्टडीज़ कैसी होती है, बहुत सिंपल होती है। आप अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे ना तो भी आप इंग्लिश लिख के जाओगे, ठीक है। आप 12th क्लास वाले को भी दे दोगे ना केस स्टडी लिखने के लिए, वो भी एक अच्छा सा आंसर लिख देगा, लेकिन उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि ये केस स्टडी है किस टॉपिक की, GS4 में आती है ये। तो इसका मतलब इसको आंसर्स करना है किसी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आपको वैसे ही आंसर करने हैं, ठीक है। देन नाउ आई विल टॉक अबाउट प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। देखो मेंस में तो सबसे बेनिफिट क्या है, आपके पास सिलेबस है, आपको पता है क्या आ सकता है, और मोस्ट ऑफ द कोचिंग विल टेल यू कि ये वाले क्वेश्चन आ सकता है और आ भी जाता है, ठीक है। 70% आ भी जाते हैं वो क्वेश्चन, लेकिन प्रीलिम्स बहुत ब्रॉड है। अब सिलेबस देखो, इतना सा सिलेबस है, ठीक है, इसमें क्या पता लगेगा आपको, तो बहुत ब्रॉड है। तो इसमें मैंने जो स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, मैंने क्या किया था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप सभी को पता है, तो जो स्टैटिक सब्जेक्ट है जिसमें कोई डायनेमिक इतना है भी नहीं, उसे पॉलिटी है, उसमें मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली थी और 4-5 बार पढ़ ली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। जैसे आप देखोगे लक्ष्मीकांत तो बहुत मोटी है, उसको रिवाइज तो कर नहीं सकते ना आप, तो उसके बेसिस पे या तो आप टॉपर्स के नोट्स रिफर कर लो या फिर आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। टॉपर के नोट्स में आपको सीधा साधा मिल जाता है, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत करने से फ़ायदा ये होता है रिटेन हो जाता है सब कुछ, ये एक बेनिफिट रहता है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो गई, लेकिन अभी जो पैटर्न चेंज हो रहा है ना लास्ट 2-3 ईयर्स से, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम हो गए, थोड़ी आर्ट एंड कल्चर के बहुत ज़्यादा हो गए, एंशियंट हिस्ट्री के। तो उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि आर्ट एंड कल्चर जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो ना, नॉर्मल जो लोग पढ़ रहे हैं वो डीप में जाके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो भी बहुत हार्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि आर्ट एंड कल्चर में आपने 4-5 बुक पढ़ दी, वो भी नहीं करना है। जो नॉर्मल लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ वही पढ़ना है, क्योंकि ये कंपटीशन बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी इजी आते हैं।
और मैप्स बेस्ड आते हैं। इस बार भी आपने देखा होगा तो मैप्स बेस्ड आए थे, काफ़ी डुएबल क्वेश्चंस थे। हालांकि पेपर थोड़ा हार्ड था लेकिन मैप्स वाले क्वेश्चन काफ़ी डुएबल थे, ठीक है। और पॉलिटी के क्वेश्चन भी काफ़ी डुएबल थे। जिसका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है ना, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि उसका प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है। जिसने स्टैटिक को बाईपास किया होगा और सिर्फ न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स पे फोकस किया होगा, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि उसका नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे, घुमाने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, और वो भी कोर सब्जेक्ट है। ये कोर सब्जेक्ट आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे, तो मस्ट फोकस, ओके। उसके अलावा क्या था, इकोनॉमी। इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 13 क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी के, और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी हार्ड भी आते हैं। देखो, हार्ड क्वेश्चंस सबके लिए हार्ड है, ये ध्यान रखना, सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं है। लेकिन जो आसान क्वेश्चंस है ना, वो अगर आपके लिए हार्ड बन गए तो आपका क्लियर नहीं होगा। तो यू मेक श्योर जो सबको आसान लग रहे हैं ना, वो तो आपसे सॉल्व होने ही चाहिए, फिर हार्ड का आप बाद में देखना, ठीक है। तो जो आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सबके सही हुआ है। और ये कंपटीशन है, इसकी क्या बोलते हैं उसे, कट ऑफ निकलेगी, ठीक है। तो कट ऑफ बेस्ड ऑन क्या निकलती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्वालिफाई करने चाहिए, उसी बेसिस पे निकलती है ना। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए अगर आपने इजी आंसर अगर गलत हो गया, वो तो सबका सही हो गया, तो आप ऑटोमेटिकली डाउन आ गए। तो इजी क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन यू विल डेवलप द कैपेबिलिटी कि आप उसको सही कर दें। उसके अलावा, ठीक है, हिस्ट्री हो गया। एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि IF इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम भी इसी के थ्रू होता है, प्रीलिम्स। तो इसलिए एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए लेकिन ये नहीं करना कि डाउन टू अर्थ पूरी मैगजीन पढ़ने लग गए, बहुत सारी बुक्स पढ़ने लग गए, नहीं। मैंने क्या किया था, मैंने ईयरली जो कंपाइलेशन आती थी वो पढ़ी थी, और एक शॉर्ट नोट्स से टॉपर के वो पढ़े थे। उसके अलावा ईयरली कंपाइलेशन में सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है ना, वो आ जाती है। उसके अलावा जब आप पेपर्स देते हो ना, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज वाले, तो उसमें आपको दिख जाता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो आ ही रहे रिपीटेटिवली, तो उसमें वो वाले क्वेश्चंस आप अपने नोट्स में लिख लो कि अगर यार सिमिलर क्वेश्चंस आ गए तो आप सॉल्व कर सकते। सिमिलरली साइंस एंड टेक के लिए, ठीक है, जनरल साइंस के लिए, इन दोनों के लिए सेम करना है। तो ये हो गया प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर कौन सा होता है, सीसेट। सीसेट का सुना है आपने आजकल क्या चल रहा है, इट इज़ गेटिंग हार्ड। बहुत सारे लोग हैं जिसका सीसेट ही नहीं निकल रहा, और वो स्कोर कर रहे हैं जीएस में, कितना स्कोर कर रहे हैं, 110, 100, 100 अबाउ से। क्यों नहीं निकल रहा? मोस्ट ऑफ द टाइम सीसेट को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। सीसेट को इग्नोर नहीं करना, लेकिन इससे ये मतलब भी नहीं कि आज आप सीसेट की बुक निकाल के बैठ गए हो और उसी को सॉल्व किए जा रहे हो, नहीं ना। जब प्रीलिम्स आएगा उस वक्त आपको सीसेट पे फोकस करना है, अभी फोकस नहीं करना। लेट मीन्स फरवरी फैब में आपको स्टार्ट करना, अभी सीसेट नहीं करना। लेकिन सीसेट में भी आपको क्या करना है, 3 चीज़ें होती है सीसेट में। क्या क्या होती है, जनरल इंग्लिश। बहुत लोगों की मैथ्स वीक रहती है, आपकी भी होगी बहुत लोगों की। इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स आप छोड़ दोगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश टफ आ जाती है, और इंग्लिश के जो आंसर्स होते हैं ना, उसमें काफ़ी सब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है। आप कीज़ भी देखोगे ना इंस्टीट्यूट की, तो आपको लगेगा इसने ये दे रखा है, उसने वो दे रखा है, और यूपीएससी ने तो कुछ और ही दे रखा है। तो कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 100% श्योरिटी होती है, मैथ्स। और मैथ्स के इजी क्वेश्चन आप सबको आने चाहिए, तो मैथ्स को कभी इग्नोर नहीं करना। एंड सिमिलरली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं वो मैथ्स ही पढ़ के चल जाता है, वो इंग्लिश को छोड़ ही देते हैं। तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका नहीं हुआ ना, उनका ऐसा ही केस था कि मैथ्स वो पढ़ के चले गए, इंग्लिश इग्नोर कर दिया और मैथ्स ही करते रह गया। तो आपको इंग्लिश में भी फोकस करना। इसके लिए मैंने क्या किया था, पास्ट 6 to 7 ईयर्स जो PYQs होता है ना, फोकस ऑन PYQs, ठीक है। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसका प्रिंट आउट निकालो सीसेट का और वो सॉल्व कर दो, बस। लेकिन ऐसा होना चाहिए, सॉल्व करने के बाद सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सॉल्व होने चाहिए आपसे। ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन आ गया, एक सीक्वेंस पूछ लिया 1 2 3 4 5, आगे क्या आएगा, आप 7 करके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना, 6 ही करना है उसको, ठीक है। तो सीसेट के लिए आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, लेकिन इसको हल्के में भी नहीं लेना। फैब में आपको स्टार्ट कर देना है सीसेट, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, अभी नहीं करना। अभी क्या करना है, फोकस। इन सब के बाद इंटरव्यू फेज आता है। इंटरव्यू फेज की तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी अभी, ठीक है, वो मेंस के बाद हो जाए।
ठीक है, 275 मार्क्स का होता है, वो आपका मेंस के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट होगी उसकी। बस एक, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट अब डालो। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़े न्यूज़पेपर, ठीक है, लेकिन आप सबको न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ठीक है। आप कोई आर्ग्यूमेंट करते हो तो आपके पास प्री डिफाइंड एक थॉट्स होते हैं, यार इसने वो बोला था, उसने वो बोला था, तो इसलिए ईजी हो जाता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, और थोड़ा बहुत बात भी करो, अच्छे लोगों से बात करो, जो डिस्कस करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो उनसे मत करो, ठीक है। इग्नोर दोस्त जो आते नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे नहीं, वो कुछ पॉइंट्स दे दो कि यार ये चीज़ अच्छी है, उनसे डिस्कस करो अच्छी चीज़। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका जो ग्रुप बन रहा है ना, जिसके साथ आप तैयारी कर रहे हो, वो एक अच्छा सराउंड होना चाहिए, सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, वो आपको भी मोटिवेट करे, उनको आप भी मोटिवेट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम, आपका यूथ है ना ये आपका, इसको वेस्ट नहीं कर सकते ना आप फालतू में। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है, तो इसका एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एक एक दिन को आपको जी जान लगा के पढ़नी है, ठीक है। ब्रेक लेना है आपको, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हर दिन ब्रेक ले रहे हो आप, और लॉन्ग ब्रेक नहीं लेना है। क्योंकि मेरी प्रिपरेशन में जैसे अगर मैं 5 दिन का ब्रेक ले लेता था, तो 5 दिन और लगते थे स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि वो आपका स्टार्ट होना बहुत मुश्किल है सेम टाइप से, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी लॉन्ग ब्रेक नहीं लेना। इमरजेंसी होगी दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने में एक बार 5 दिन की ट्रिप में चले गए, ठीक है, ये सब नहीं करना है आपको। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल कि व्हाट इज द रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, ठीक है। ओके, सो प्रीलिम्स के लिए है ना, सबसे पहले PYQs का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप सबको क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, दीज आर माई रिकमेंडेशन, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस का तो प्रिंट आउट निकालना है आप सबको, ठीक है, और GS4 तो पूरा सिलेबस से पढ़ना है, उसमें कहीं बाहर नहीं जाना आपको। जो जो सिलेबस का पॉइंट, जैसे मैंने एटीट्यूड बोल दिया, तो आपको एटीट्यूड की डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर मैंने इंटीग्रिटी बोल दिया, तो इंटीग्रिटी की डेफिनेशन एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा थीम वाइज PYQs अवेलेबल है, बहुत सारी कोचिंग जहाँ पे भी होगा, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर लो हर GS के और ऐसे के, ठीक है। उसको प्रिंट आउट करवा लो, और उसको एक बार रीड आउट करो कि यार कैसे क्वेश्चंस आते हैं GS में, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, जस्ट लाइक पॉलिटी आपका कंप्लीट हो गया, तो पॉलिटी के आप PYQs पढ़ो कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो जो आपने पढ़ा उससे। अगर नहीं कर पा रहे तो दैट मीन्स थोड़ा तो गैप है, तो या तो अपने टीचर से डिस्कस करो, या इंटरनेट से डिस्कस करो, या अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, ठीक है। दूसरा प्रीलिम्स में तो PYQs का बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट 10 ईयर के प्रीलिम्स के PYQs आपको करना है, ठीक है। पहले आपको टॉपिक वाइज PYQ करना है, उसके बाद आपको ईयर वाइज PYQ करना है, दोनों की 2-2 साइकिल करनी है आपका। इससे क्या बेनिफिट होता है कि कभी कभी क्या है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको किसी को नहीं आते, आपको आते ही नहीं, किसी को नहीं आते, लेकिन आप देखोगे कि जो टॉपर्स होता है ना, उस क्वेश्चन को सही करके आ जाता है, ठीक है। तो वो माइंड बन जाता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना UPSC की क्वेश्चन, तो आपका माइंड बिल्ड हो जाता है कि यार अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है। तो इसलिए लास्ट के 10 ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक GS के लिए, PYQ के लिए व्हाट यू कैन डू, जब आपका कोर्स हो जाए ना यहाँ पे या कहीं पे भी आप जहाँ पे भी कर रहे हो, तो उसके बाद है ना जो PYQs है ना, उसके आप पावर आंसर राइटिंग कर सकते हो। व्हाट आई मीन फ्रॉम पावर आंसर राइटिंग, लाइक जैसे 10 मार्क्स है, कितने मिनट मिलते हैं आपको 10 मार्क्स को, और 15 के 10 to 11 ना। तो जो क्वेश्चन 10 मार्क्स के ना, ट्राई करो उसको 2.5 या 3 मिनट में शॉर्ट नोट्स बना के लिखो, कि जैसे कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप मन में जो जो आ रहा है वो ऐसे लिख दो, पेज भरना नहीं है इसमें, इसमें आपके आइडियाज़ लिखने हैं, ठीक है। फिर उसको कंपेयर करो कि यार ये क्वेश्चन मैंने एड्रेस किया है नहीं किया है, ठीक है। अगर एड्रेस नहीं किया तो वापस कंटेम्पलेट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, फिर वापस 3 मिनट दे, ठीक है। 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। वैसे ही आपका डेवलप, क्योंकि आप सोचो 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 7 मिनट है, आपको 2 पेज भरना है, इट्स अ हार्ड जॉब राइट, क्योंकि आपको सोचना है उसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सोच लेना है, इंस्टेंट सोचना है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप इंस्टेंट सोच पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हो, मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है।
उसके अलावा सिलेक्शन ऑफ पेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो कोई बताता नहीं है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बॉल पेन लिख के जा रहे हो तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, वेरी क्लियर। क्योंकि कितने पेपर्स होते हैं, 5 पेपर्स शुरू में होता है, ठीक है, हालत ख़राब हो जाती है। 3-3 घंटे, 3-3 घंटे का एक पेपर है। और वो भी कैसे होता है, पहला ऐसे का होगा, फिर नेक्स्ट डे सुबह शाम, फिर नेक्स्ट डे सुबह शाम। तो आपकी जो ये हाथ की जो नसें होती है ना, खड़ी हो जाती है। और बॉल पेन थोड़ा रफ होता है, ठीक है। तो जब आप लिखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार पूरा नहीं हो रहा मेरा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मेंस का, कंप्लीट करना पेपर। अगर आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, दैट मीन्स 20 नंबर गए आपके, 30 नंबर गए आपके। अगर उसमें थोड़ा भी लिख दिया, मतलब 4-5 नंबर 10 नंबर तो मिलेंगे आपको। क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, मेरा रिकमेंडेशन, क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। तो उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, स्पीड आनी चाहिए आंसर राइटिंग में। तो पेन चूज वाइजली जिसमें आप थोड़ा तेज लिख पा रहे हो, ठीक है। और ऐसा नहीं तेज लिख पा रहे हो तो आप लकीटे लिख के आ गए, दैट शुड नॉट बी केस। वो तो लेजिबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं इंटरनेट का यूज़ आपको करना ही है, ठीक है। चैट, जैसे मैं मेंस में क्या यूज़ करता था, मैं आंसर लिख लेता था और ऑनलाइन चैट जीपीटी को भेज देता था कि आप इसको वैलिडेट कर दें। तो वो बोल देता था कि आपका ये डायमेंशन मिसिंग है, ये डायमेंशन मिसिंग है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ये आपको करने नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको भी टूल्स यूज़ करना है, ठीक है। आप उससे ये पूछ सकते हो कि यार जैसे कुछ क्वेश्चन है आपका इन्फ्लेशन का है, आपको इन्फ्लेशन समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप डालो चैट जीपीटी में कि इन्फ्लेशन मुझे ऐसे समझाओ जैसे मैं 10 साल का बच्चा हूँ। इट विल एक्सप्लेन यू, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। फिर वही एक्सप्लेन करके अपने टीचर से पूछो यही है कि इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी और ऐसे टूल्स है ना, जितने भी एआई टूल्स आपको यूज़ करने हैं अपने प्रिपरेशन। और लास्ट इज सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन। जिसने भी ऑप्शनल का सिलेक्शन नहीं किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शनल से कई बार डिसाइड होता है कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। मैंने मैथ्स ऑप्शनल लिया था, मेरे 3 साल वेस्ट हो गए मेरे, ठीक है। तो ऑप्शनल चूज़ वाइजली, एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करो जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, जिसमें आप और पढ़ सकते हो और जिसमें मार्क्स भी आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। चाहे आप वो 7 दिन ले लो ऑप्शन चूज़ करने के लिए, लेकिन हर बार में जैसे मेरा दोस्त सॉफ्टवेयर ले रहा है तो भी मैं ये ले लेता हूँ, ऐसे नहीं करना, ठीक है। जो दोस्त ले रहा है वो तो हो जाएगा, आपका नहीं होगा फिर, ठीक है। तो आपको वही ऑप्शन लेनी है जो आपको पसंद है, जिसके रिसोर्सेज थोड़े ठीक है और जिसमें आप स्कोर हाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एनी क्वेश्चन सर? यस मैम। तो ask कि for current affairs it is beneficial कि पोस्ट न्यूज़ कितना रीड करें या फिर मंथली मैक्सीज टाइप का? सी इट डिपेंड्स। आप फुल टाइम स्टडीज़ कर रहे हो ना, न्यूज़पेपर इज़ गुड, यू शुड डू। कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको करना ही चाहिए। न्यूज़पेपर में भी आपको सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे एयर इंडिया की न्यूज़ है, वो बार बार आ रही है सेम न्यूज़, आप उसको बार बार पढ़ रहे हो तो दैट डजंट मेक सेंस, ठीक है। तो एयर इंडिया में क्या फॉल्ट था, सिविल एविएशन में क्या, कौन सी बॉडीज़ है जो इनको रेगुलेट करती है, क्या क्या इंटरनेशनल लॉज है, ये सब पे फोकस करना है। जो एक्सप्लेन्ड, इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ते हो, मैं इंडियन एक्सप्रेस अभी पढ़ता था, पहले नहीं पढ़ता था, तो एक्सप्लेन सेक्शन और एडिटोरियल सेक्शन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वन सेकेंड। और जो जैसे मैंने कभी मंथली कंपैरिजन नहीं पढ़ी है, और कभी भी आप है ना फोमो क्रिएट मत करो कि यार करंटली मेरे को ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेरा ये फ्रेंड पढ़ रहा है मैं नहीं पढ़ रही। मैंने नहीं पढ़ा था फिर भी हुआ ना, किया हुआ ना। तो इट इज़ पॉसिबल, इट्स अप टू यू कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वही एग्जाम में आ गई और आपने जो चीज़ पढ़ी है वो आपको याद है। यार करंट अफेयर्स के लिए मैंने ईयरली वाला रिफ़र किया था, लेकिन आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ने चाहिए, ठीक है। एंड सर द गेनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स जो आजकल टाइम में चल रहा है, पीएससी इज आस्किंग मोर इनटू स्पोर्ट्स। तो पहले तो ऐसा बोला जाता था कि स्पोर्ट्स को ऐसे इग्नोर कर सकते, बट फिर अब अचानक से उसको पूछने लग ट्रेंडी को उसके बारे में कुछ। स्पोर्ट्स देखो 2022 में शायद स्टार्ट किया था क्रिकेट का पूछ के। स्पोर्ट्स में जो ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स है ना, कौन से ट्रेंडिंग है वो आपको कोचिंग वाले बताएंगे। आजकल कोचिंग वाले भी स्मार्ट हो गए हैं, वो भी पैटर्न देखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़े जा रहे हो रोज, दैट डजंट मेक सेंस। आप क्वेश्चंस भी देखोगे तो वो स्पोर्ट्स सेक्शन से क्लियर नहीं होंगे आपके, वो आप कोचिंग की थोड़ा मटेरियल हो या इंटरनेट आपने किया उसी से क्लियर होगा। तो उसमें आपको ये नहीं सोचना कि स्पोर्ट्स तो अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ही तो आ रहे हैं, 2-3 ही आ रहे हैं ना, उसको आप छोड़ दो। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलिटी में से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी से आ रहे हैं, एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना।
क्रिकेट और ये जो आ रही है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, एक क्वेश्चन हो सकता है 3 क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें चेस बहुत ज़्यादा हाईलाइट था, बहुत ज़्यादा हाईलाइट था ना, तो उसका क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आप जब FLT मतलब टेस्ट सीरीज लगाओगे उसमें भी क्वेश्चंस थोड़े सिमिलर टाइप के मिल जाएंगे आपको, उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी आपको, ये ध्यान रखो, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. So, what are the barriers for you? Like, you drop mathematics name of the pattern. So, like, सी ऑप्शनल इज लाइक योर बेबी, ठीक है, आइदर गर्लफ्रेंड और रियल बेबी, ठीक है, तो ऑप्शनल चेंज करना डिसीजन बहुत हार्ड होता है, क्योंकि आई हैव गिवन 4 years तो मैथमेटिक्स ऑप्शन, ठीक है, तो हर्डल बेसिकली यही था कि टाइम कम था, मैं आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल और मुझे ऑप्शनल चेंज करनी है और मुझे पढ़ाई भी करनी है, पूरी ऑप्शनल करनी है, और मेरा कंपटीशन क्या है, जो ऑलरेडी सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड्स हैं, ऑलरेडी 4 साल दे चुके हैं, या कुछ लोग जो फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो कंपटीशन इज़ ऑल्सो वेरी हाई, तो बेसिकली हिंड्रेंस अपना खुद ही है, ठीक है, ये नहीं है हिंड्रेंस आपकी, ठीक है, आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने टारगेट्स बनाने हैं। जैसे मैंने क्या किया था, लोग दिल्ली में जाके पढ़ रहे हो खूब, आप लोग भी पढ़ रहे हो, सब कुछ छोड़ के पढ़ रहे हो, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, अगर मैं सोचने लग जाऊँ कि यार मेरे से तो 24 घंटे ज़्यादा पढ़ रहे हैं लोग, तो मैं पढ़ नहीं सकता ना, फिर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाएगा, तो ये सब नहीं सोचना कि वो ईयरली कंपाइलेशन उस कोचिंग की पढ़ रहा है, मैं ईयरली इसकी पढ़ रही हूँ, कुछ भी नहीं सोचना, आपको बिलीव करना है खुद पे मीन्स यू नीड टू सेट योर ओन टारगेट्स। अगर जैसे मैंने ऑप्शन चेंज किया, क्यों सक्सेसफुल हुआ मैं, क्योंकि मैंने अपने सेट टारगेट्स किए, मैंने कहा कि सब कुछ नहीं पढ़ सकता मैं, सब कुछ नहीं पढ़ सकते ना, बहुत कम टाइम है, वर्किंग प्रोफेशनल है, जनवरी में मैंने चेंज किया, सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं क्या क्या पढ़ सकता हूँ, और जो मैं पढ़ूंगा मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, तो मैंने सिर्फ एक रिसोर्स पे ही फॉलो किया और उसी रिसोर्स को बार बार किया, ठीक है, और वो बार बार करने का ये बेनिफिट हुआ कि जैसे ही मैं आंसर्स गया पेपर देने तो वो मुझे याद था और वो मैंने पूरा रेप्लिकेट कर दिया, इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हिंड्रेंस विल बी क्रिएटेड बाय योर सेल्फ, समटाइम्स बाय योर फैमिली, क्योंकि प्रेशर डालेंगे, लेकिन उसका भी प्रेशर आपके ऊपर लेना सिर्फ आपके माइंड पे ही डिपेंड करता है ना। अगर आप उसको बहुत सीरियस ले रहे हो कि मम्मी पापा ने ये बोल दिया आज तो मेरा ये हो गया, तो वो आपका इशू है, बोलेंगे लोग, फ्रेंड्स के सिलेक्शन होगा आपके साथ साथ इस जर्नी में, वो आपको ही ध्यान रखना है कि इस जर्नी में है ना बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपको, और उस अप्स एंड डाउन से आप सीखोगे भी, तो टूटना नहीं है, बस लगे रहना है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। so what was the problem with maths? Like, आपकी मैथ्स ऑप्शन है क्या? सी एवरी ऑप्शन इज गुड, मैथ्स इज नॉट बैड, मैथ्स में लोग 320 स्कोर करते हैं, इस बार 325 कुछ ऐसा मार्क्स है, सोशियोलॉजी का हाईएस्ट 293 है, तो कुछ लोग ले रहे हैं मैथ्स इसलिए अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप मैथ्स के PYQs निकालो, ठीक है, PYQs देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या। मेरा बार बार नहीं हो रहा था ना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव चेंज्ड, और बहुत मुश्किल है चेंज करना। तो आप अगर मैथ्स ले रहे हो तो यू शुड बी श्योर कि आप मैथ्स ही पसंद करते हो। 4 साल बाद ये नहीं होना चाहिए कि यार मैथ्स तो मेरी हो नहीं रही। तो PYQs आप डाउनलोड करो, देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो, मैथ्स की स्ट्रेटेजी करो, और मैथ्स में बस एक ये ध्यान रखो कि मैथ्स का जो कंपटीशन है ना वो बहुत हाई है, मतलब यू विल बी कॉम्पिटिंग विद द IITians, ठीक है, तो ये माइंड में रखना है। लेकिन इससे ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, ठीक है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपका कंपटीशन बहुत हाई है, तो इसमें स्केलिंग होती है। इफ़ यू हर्ड अबाउट इट, कि मैथ्स में आप 500 नंबर ला सकते हो ना, तो 500 क्यों नहीं आ रहे लोगों के, समथिंग इज देयर ना। ह्यूमैनिटीज़ में आप नहीं ला सकते 500, लेकिन मैथ्स में तो ला सकते हो, तो भी नहीं आ रहे, दैट मीन्स कुछ तो हो रहा है। तो उसमें यह है कि जो टॉप में है ना, मैथ्स में टॉप में मतलब जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है उसके तो अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आप बीच में आ गए ना तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अच्छे, आपके नीचे ही जाएंगे। तो टेक्निकल ऑप्शन का ये है कि आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा उसमें। ह्यूमैनिटीज़ का ये रहता है इतनी स्केलिंग नहीं होती, तो आप एवरेज स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में हाई लो होता है, एवरेज बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब देख के, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी सुन के, PYQs देख के ही डिसीजन लो। और ऑप्शनल में आप टाइम लगाओ, आप 1 हफ्ता लगाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। किसी के प्रेशर में मत आओ कि यार कोर्स स्टार्ट हो गया है अब तो मैं पीछे रह जाऊंगी, कोई पीछे नहीं रहने वाले आप, ठीक है। सी डेली रूटीन इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। मैं वर्किंग प्रोफेशनल था तो और मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई का ट्रैफिक सबने देखा है, आप लोगों को तो पता ही होगा।
तो 1 hour ट्रैवल, 1 hour गोइंग बैक। तो मेरे पास जो वर्किंग डेज में 3 to 4 hours रहते थे, ठीक है, पढ़ने के लिए। और सैटरडे संडे मेरे पास रहता था कि मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ये जो नंबर ऑफ आवर्स वाली डिबेट है ना, दैट शुड नॉट बी कंसर्न यू, ठीक है। मैंने 3-4 घंटे डेली पढ़ के निकाले और सैटरडे संडे में इंक्रीज कर देता था, 6 to 8 हो जाते थे, लेकिन निकाले। लोग 12-12 घंटे करके भी निकालते हैं, लोग 14-14 घंटे पढ़ के भी नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो इट नंबर ऑफ आवर्स इज डज नॉट मैटर, ठीक है। वॉट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी, कि आपने जो लिखा है कि आज 4 घंटे में मुझे कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जब प्रीलिम्स या मीन्स पास में आ रहा है, तो जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको डबल करना है। इफ़ यू आर स्टडिंग 4 hours तो आपको 8 hours करना है। इफ़ यू आर स्टडिंग 6 आपको 12 करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा ना, आपको आपकी एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स आपको इंक्रीज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतना सारा रिवाइज करना है आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर्स डज नॉट मतलब इतना कंसर्न नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको परसिवरेंस शो करना है, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, और एक टाइम टेबल बना के पढ़ाई करनी है, ठीक है। ओके। So interview आपके कितने मार्क्स? इंटरव्यू में मेरे कम मार्क्स थे लेकिन इंटरव्यू में मेरे कम मार्क्स थे, 157 मार्क्स थे, ठीक है। इट्स ऑल बिकॉज मेरा डे अच्छा नहीं था, वो इट्स अप टू, और मेरे हिसाब से मैं वैसे प्रेजेंट नहीं कर पाया जैसे मुझे प्रेजेंट करना चाहिए था, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ रह जाता है आपका इस प्रिपरेशन में। कि 157 इज़ वेरी लो मार्क्स, अगर आप कंपेयर करोगे ना एवरेज, तो 183 इज़ एवरेज मार्क्स इन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू स्टेज में किसी ना किसी का हो ही जाता है। किसी के जीएस में अच्छे आ जाते हैं तो किसी के इंटरव्यू में रह जाते हैं, किसी के इंटरव्यू में बहुत अच्छे आ जाते हैं तो जीएस में थोड़े कम रह जाते हैं। इट्स ऑल डेस्टिनी, ठीक है। So first of all, congratulations. Thank you. My question to you is that what was your approach towards a 10-mark answer and a 10-mark answer? Was there a proper defense towards in your opinion? See, first of all, read question carefully, both 10 marks and 15 marks. If you see in 15 marks, most of the time there will be given different type of question. For in first part they will ask different, in second they will ask criticism, recommendation. So you need to create different headlines. Okay, clear headlines, ठीक है। But in some of the 15 marks cases what happen, एक simple question पूछ लेता है तो उसमें आपका dimension नहीं है। In that you need to create your own dimension based on the, अगर critically analyze or discuss है तो आपको अपनी एक dimension बनानी पड़ेगी, क्योंकि 3 पेज तो आपको भरने हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है, पेज तो भरने हैं आपको। ऐसा नहीं 2 पेज का है और 1.25 पेज भर के आ गया और आप सोचो आप टॉप करोगे। आपको 2 पेज भरने हैं, 3 पेज भरने हैं। तो जो 15 मार्क्स क्वेश्चन है उसमें ये इश्यूज आते हैं कभी कभी, और 10 मार्क्स में कभी ये इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपकी पूरे ऐसी डायमेंशन दी होगी जो भरी जाएगी और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सेम ही टाइप का होता है और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। So the biggest concern is essay writing. As you mentioned that it needs to be clear, concise, and there should be a proper flow as well. But then when I'm about to write an answer, which is essay, which is philosophical. So the one question which I attended was your perception of me the perception of me is a reflection of you, and my reaction to you is an again. So I couldn't elaborate much more on it as much as should have. So very words. So how can I elaborate and then still be able to give justice to it? See, first of all, these अगर ऐसे टॉपिक्स हैं ना उसको इग्नोर करना है आपको। यू डोंट चैलेंज देम कि अब मैं ये लिखे मैं फाड़ दूंगा, मैं तो बहुत अच्छा स्कोर करना है, ऐसा चैलेंज नहीं लेना। आपको मार्क्स चाहिए। दिस टॉपिक इज़ वेरी हार्ड। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई थी इसमें, इसको समझने में प्रॉब्लम आई थी। जिस ईयर 2000 कब है 21-22 में, तो इसको समझने में ही मुश्किल हो गई थी कुछ क्वेश्चन, कुछ को, और कुछ लिख के लास्ट में आया था कि अब आप क्या लिखे। तो जो ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे में आपके पास क्या लिबर्टी है, 4 टॉपिक्स आते हैं ना, तो उसमें से एक चूज करना है, और आपने जाके ये टॉपिक चूज कर लिया तो आपकी तो वैसे ही लग जाएगी यार ये क्यों किया है मैंने टॉपिक चूज। तो डोंट चैलेंज इट। कुछ टॉपिक्स बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स का एक आया था, मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक से रिलेटेड एक आया था, तो वो तो हार्ड था। जिसने वो किया वो तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंज है, या तो वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा या वो बहुत गंदा स्कोर करेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स हमेशा इग्नोर करना है एग्जाम के एनवायरनमेंट में। बाकी जो डायमेंशन, जैसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े, तो आप इसको हर एक जो वर्ड होता है ना, हर एक वर्ड पर
उसको आप तोड़ो कि इस वर्ड में और क्या क्या आप देख सकते हो, कि इस वर्ड को आप सोसाइटी से रिलेट कर सकते हो क्या, इस वर्ड को आप नेशन से रिलेट कर सकते हो क्या, इस वर्ड का कोई इंटरनेशनल में कोई एग्जाम्पल है क्या। तो जब आप वर्ड ब्रेक करोगे ना तो आपका थॉट डेवलप होगा, ठीक है। और बिफोर एग्जाम ट्राई की जो PYQs है ना उसमें आप ब्रेन स्टॉर्म तो करके जाओ सबके। अगर आपको लिखने का टाइम नहीं है तो ब्रेन स्टॉर्म आपको करना है लास्ट 5 ईयर के ऐसे का। और ऐसे में इतना टेंशन नहीं लेना कि आप आज से ही ऐसे लिखने में प्रो हो जाओगे। ऐसे इज कल्मिनेशन ऑफ ऑल GS एज वेल। तो जब आपका GS का नॉलेज पूरा सही हो जाएगा ना तो आपका ऐसे में एक अलग डायमेंशन खोलनी भी आ जाएगी। स्पेशली GS4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऐसे, ठीक है। और ऑप्शनल का थोड़ा बहुत रोल रहता है लेकिन GS4 का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। और ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है एग्जाम में जाके, ठीक है। ओके, Sir, is there any specific strategy for social? इट इज़ देयर ऐप, इट इज़ देयर। So can you share some of your strategy? Okay, well, that will take one more session. लेकिन I will share in short जी। See, मेरी जो सोशोलॉजी की स्ट्रेटेजी थी, आई हैव लिमिटेशन। एक तो टाइम की लिमिटेशन, ठीक है। तो वो एक बोन भी है एक तरह से, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है तो आपके पास सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आप क्या फोकस करोगे, एक स्पेसिफिक कंटेंट को फोकस करोगे। तो मैंने क्या किया था, स्लीपी क्लासेस करके एक सोशियोलॉजी की क्लासेस है, ठीक है। मैंने उसके कंटेंट पढ़े और उसके कंटेंट मैंने 4 से 5 बार पढ़े थे, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद जो टॉपर्स वो होते हैं ना, टॉपर्स के आंसर कॉपी, इफ़ यू सर्च टॉपर्स आंसर कॉपीज आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, विजन में मिल जाएंगे या फिर कहीं और मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो मैंने देखे कि उसमें आंसर्स कैसे लिख रहे हैं लोग, ठीक है। तो मैंने जो कंटेंट पढ़ा था उसको मैंने मैच किया कि मैं उस क्वेश्चंस को एड्रेस कर पा रहा हूँ क्या। और फिर मैंने कंपेयर किया कि टॉपर्स जो लिख रहे हैं और मेरे में क्या डिफरेंस है। इट इज़ डे एंड नाइट डिफरेंस, ठीक है। इनिशियली यू विल फाइंड कि यार ये तो लिख ही नहीं सकता मैं, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोग्रेस करोगे ना, जब मेंस की कंप्लीट पास में आते जाओगे तो आपको क्या करना है, हर ऑप्शन में करना है ये, नॉट ओनली सोशियोलॉजी। आपको अपने ऑप्शन के 50 पेजेस नोट्स बनाना कैसे भी करके। कभी भी ये नहीं होना चाहिए मेंस आ रहा है और अपनी मोटी बुक खोल के आप उसको रिवाइज कर रहे हो। आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के 50 पेजेस के नोट्स बनाने हैं, ठीक है, सबको, सारी ऑप्शन में। और उस 50 पेजेस में ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा लिख के सभी लिख दिया उसमें, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना। जैसे सोशियोलॉजी में थिंकर्स, फिलोसफीज, और हर चैप्टर वाइज है ना, हर चैप्टर वाइज आपको क्लासीफाई करना है। ये इस चैप्टर का ये टॉपिक है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ गए तो आपको कौन कौन से थिंकर्स सीखना, ठीक है। तो मैंने ये नोट्स बना लिए थे 50 पेजेस और फिर मैंने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। मतलब आप रात को भी मेरे को उठा रहे हो ना तो मुझे वो थिंकर्स याद है। तो जब मैं आंसर्स लिखने गया ना तो इजीली मैंने उस थिंकर्स को उसमें पुट कर दिया। और मेरा जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस था GS में तो वो वहाँ हेल्प हो गया कि जो मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स थी ना वो अच्छी थी। तो यार आई नीड वन गेस। Okay, were you able to solve all the questions in question 10 of Maze? मेंस में आपको करना ही है Um, ऑल द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही टेक्निकल आ जाते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप का क्वेश्चन आ गया था, उसमें आपको कम आइडिया है, दैट डजंट मीन कि आप अटेम्प्ट नहीं करोगे इसको। नॉर्मल आइडिया तो है टेलीस्कोप के बारे में, वो टेलीस्कोप का आइडिया लिख के आओगे। मेरा रिकमेंडेशन ये है, क्वेश्चन छोड़ के मत आओ। और ये आपका हो जाएगा जब आप मेंस का पेपर देने जाओगे ना, तो आप जनरल आंसर किसी का भी लिख दोगे। आपको बोलेंगे इस AC के बारे में लिखो, आप AC के बारे में लिख दोगे, ठीक है। मोटर है, हवा देता है, घूमता है, इधर इधर लाइट एंड लेफ्ट करता है, तो यू कैन जनरिक आंसर यू विल गिव। और इसमें पूछा गया है, ये जनरल स्टडीज है ना, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक तो पूछ नहीं रहा, तो जनरल आंसर तो आप सबका लिख ही सकते हो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको हाई स्कोर करना पड़ता है, आपको ब्रेक करना है ना एक लिमिट को कि 110 से ऊपर जाना है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स डालने होता है। जैसे एग्जाम्पल्स डाल दिया, केस स्टडीज डाल दिया, कुछ आर्टिकल्स डाल दिए, ऐसे कर। तो क्वेश्चंस तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही रहेगी कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। और कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो सही में समझ में, जैसे फिजोर्ड का आ गया था क्वेश्चन, सुना है फिजोर्ड क्या होता है? मेरे को तो नहीं पता था, बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे तो उसका। नहीं, मैं तो 2 पेज भर के आया था उसमें, मुझे आइडिया ही नहीं फिजोर्ड होता क्या है, फिर भी बेसिक्स लिख के ही आया था मैं। तो उसमें मेरे को 2 नंबर, एक या 2 नंबर तो मिले ही होंगे। तो इसलिए ना छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। जनरिक आइडिया लिख दो उसमें, फिजोर्ड क्या होता है, सीनरीज अच्छी होती है, उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में ब्यूटीफुल ऐसे करके, सीनरी अच्छी होती है, वेदर अच्छा होता है, ऐसे करके लिख दो बस।
सर डॉक्टर की ते बेसिक स्टार से सवाल कर देखो, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, लेकिन आई रिकमेंड सबको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ठीक है, खासकर ज्योग्राफी के, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिक लो, मैंने अमित सेन गुप्ता करके यूट्यूब में एनसीईआरटी पढ़ाता है, ठीक है, उसके मैंने 9th 10th 11th 12th की वीडियोस देखी है बस। तो आपको अगर ज्योग्राफी में इश्यूज आ रहे हैं बेसिक्स में, तो आप वो कर, यस यू कैन। Sir, So, sir, as you said that the answer should not be random, it should be data oriented and everything is the depth. So, but again, he said you are a working officer, and I guess many people there are through the working and they are studying for this. Since once we had a lecture on of Oliver and Fire, and she said that I used to write more than 10 answers per day. That she used to evaluate everything and everything. So it fears me like at this stage we had not even a single attempt, and we had a 1 year. So being a working and study for USC, how did you practice first for getting ordinary and properly? The man is not a so what was the self? फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी स्ट्रेटेजी अलग रहती है, ओके मेरी स्ट्रेटेजी अलग है, उनकी स्ट्रेटेजी अलग है, शी हैव डिफरेंट थॉट्स और डिफरेंट लाइफस्टाइल, सब कुछ अलग है, मेरा भी अलग है। किसी और की स्ट्रेटेजी अपने ऊपर थोपनी नहीं है कि उन्होंने ऐसे बोला तो ऐसे ही क्रैक हो सकता है। एक स्टार्ट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, एक ही रास्ता नहीं है, ऐसा रास्ता है, किसी का ऐसा रास्ता है, किसी का ऐसा रास्ता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैंने जीएस का एक भी टेस्ट नहीं लिखा इस बार, एक भी, ओनली मैंने अभ्यास जो विजन का होता है ना, सिर्फ वो लिखा है। तो अगर ये किसी को बताओगे आप, तो ये तो निकाल ही नहीं सकता ना। कोई जीएस का बिना पेपर एफएलटी के निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि मैंने ऑप्शन चेंज की थी, मेरे सर्कमस्टेंसेज आर टोटली डिफरेंट। मुझे ऑप्शनल नहीं है तो मुझे ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लगानी थी, तो मेरी प्रायोरिटी क्या थी, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लगानी। लेकिन उसके लिए मैंने क्या सेक्रीफाइस किया, जीएस की मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान को आप बताओगे, हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। अनटिल यू डू इट एवरीबडी विल से कि ये पॉसिबल नहीं है। जिस दिन आप कर दोगे आप बोलोगे ये पॉसिबल है। तो डोंट गो ब्लाइंडली कि किसी ने आपको कह दिया कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको 10 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ लोग ऐसे भी है कि जिन्होंने जीएस के पेपर से नहीं लिखे हैं। लेकिन इट डज, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीएस के पेपर ही नहीं लिख रहे, ठीक है। वो जीएस के पेपर लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैंने 3 साल पहले से 2 बार मेंस दिया था, तो मेरे लिए ठीक था, लेकिन आपके लिए वो लिखना ज़रूरी है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप कैसे पीक कर सकते हो। पीक करने का मतलब ये नहीं कि रोज़ आप 10 क्वेश्चन लिख रहे हो और सब कुछ बंद हो गया आपका लाइफ में, आप ना ऑप्शनल कर पा रहे ना आप जीएस को पढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखोगे कि आप कितने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीड इज़ इंपॉर्टेंट इन जीएस। जैसे 20 क्वेश्चन कंप्लीट करना, इट्स नॉट ए इजी टास्क। तो इसलिए वो मैडम ने इसलिए बताया होगा कि रोज़ उन्होंने 10 क्वेश्चन लिखे होंगे ना, तो उनकी स्पीड बहुत इंक्रीज होगी, उसका बेनिफिट उनको मिला होगा। वैसे आप अगर 10 क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे डेली, तो हफ्ते में आप ट्राई करो 10 क्वेश्चन लिखने की, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि वैसी ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आपकी लाइफस्टाइल अलग है, आपके घर और सब कुछ अलग है, आप जहाँ रहते हो वो अलग है, आपकी सिचुएशंस अलग है, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्लान योरसेल्फ कि आप कैसे पीक कर सकते हो, और पीक कोई भी कर सकता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था अनिमेश प्रधान, उसकी रैंक 2 आई थी, इंडियन ऑयल में काम करता था वो, फर्स्ट अटेम्प्ट, वर्किंग प्रोफेशनल। नोबडी कैन बिलीव कि AI 2 कैसे आ गई, लेकिन आ गई ना उसकी। तो आ जाती है, करने वालों की कुछ भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करके लिखने की प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फाइनली तो किस बेसिस पे मार्क्स होगा आपका, जो आपने लिखा है, और आपने उल्टा सीधा लिख दिया तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और घबराना नहीं है, ठीक है। It is it static? वेरी बेसिक स्ट्रेटेजी, जब भी प्रीलिम्स क्लोज आ जाए तो नया रिसोर्स नहीं उठाना, ठीक है। खुद के बहुत शॉर्ट नोट्स बनाना है। इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस की डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहेगी। मेंस में आपके हर जो सब्जेक्ट्स है ना, उसके 10 पेजेस नोट्स बनाना है आपको। कैसे बनाना, वेरी स्मॉल, उसमें सब कुछ नहीं लिखना। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक लिखा तो उसकी कमेटी लिख लो, फिर राकेश मोहन कमेटी लिख दिया, ऐसे करके जो कमिटीज़ है ना, कमिटीज़ है इंपॉर्टेंट टू दैट टॉपिक, केस स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर, सिर्फ यही मेंशन करो अपनी रिवीजन नोट्स में, ठीक है। उसके अलावा प्रीलिम्स का जैसे बात हो, प्रीलिम्स में है ना टेस्ट सीरीज लगाना
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मल्टीपल, ठीक है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप टेस्ट सीरीज लगा लोगे, उसके बाद आपको उसको वापस देखना है कि आपने ये क्वेश्चंस गलत किए तो क्यों गलत किए, आपने क्या सोचा था और क्यों नहीं सोचा वैसा जैसा इस आंसर्स में लिखा हुआ, ठीक है। उसके अलावा प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट ये है कि PYQs बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए आपके, ठीक है। मैं क्या करता था, जब एग्ज़ाम करीब आता था ना प्रीलिम्स का, मैं PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँ। मैंने 5-6 बार PYQ सॉल्व कर रखे, फिर भी PYQ सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेंटलिटी बन जाती है आपकी। जब आप सॉल्व करते हो ना, आपको होता है कि UPSC ने क्वेश्चन पूछा तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है। और रिवाइज करने के लिए बेस्ट ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, अपने पर्सनल, कोचिंग के नहीं, खुद के, ठीक है। वो भी हर सब्जेक्ट वाइज, ओके। आपने बहुत आगे क्वेश्चन भेज दिया, ठीक है। इट विल कम यार आफ्टर। आप पहले मेंस पे फोकस करो, फिर सर्विस प्रेफरेंस विद डाउट। इफ़ यू हैव एनी डाउट विद रिलेटेड टू मेंस एंड उसके बारे में तो यू कैन आस्क। सर्विस प्रेफरेंस, कैडर प्रेफरेंस, इट इज आउट ऑफ सिलेबस है अभी आपके, बट माइन इज IAS, IPS एंड देन IRS, ओके। ओके, तो स्टडी हार्ड, बी कॉन्फिडेंट, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, अपने दिमाग को ज़्यादा चलाना नहीं है कि यार ये क्या कह रहा है, वो कितना पढ़ रही है। अपना दिमाग सिर्फ कहाँ चलाना है, पढ़ने में, ठीक है। किसी और को नहीं देखना है, खुद को दूसरों से कंपेयर ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल। आप देखो, लोग 4-5 साल कैरी कर रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, तो बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी है ना सबकी, बहुत स्ट्रगल है, बहुत कंपटीशन है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा आप में से एक भी नहीं निकलेगा और 2-3 निकल जाएंगे, हो सकता है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है लाइफ में कि आपको प्लान बी का भी प्रिपेयर रखना है। ये लाइफ तो चलती रहनी चाहिए ना। UPSC होगा, UPSC की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वेरी वेरी लेस। आप सभी का होगा, मैं मानता हूँ। आप अपना 100 से 200% दो शुरुआती ईयर्स में, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ये भी रखो कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा, ठीक है। तो जो आपकी स्किल्स है, जो कॉलेज से एक्वायर की है या कुछ और एक्वायर की है, उसको भी आप पैशन की तरह फॉलो करो। कब? 2 अटेम्प्ट्स के बाद। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये रहना चाहिए कि अगर UPSC नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर लूँगा। ऐसे ही नहीं UPSC में 6 के 6 साल दे दिए आपने, उसके बाद आपको लग रहा है, डिप्रेशन आ रहा है कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये जर्नी बहुत स्ट्रगलिंग है और बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। ब्लाइंडली नहीं करना कि एक आपने वीडियो देख लिया टॉपर्स का, आप कह रहे हो कि मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए और अब 10 साल लगा दिए आपने, ऐसे भी नहीं करना, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट, सिंसियरली करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, ज़्यादा लोगों की मत सोचो, सिर्फ खुद की सोचो, एंड यू विल डू ग्रेट, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट। Me. So thank you so much. Yeah. But you. ओके, आपको सेक्शन में जो जो बताया सर ने वो सब सिर्फ इम्प्लीमेंट करो। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन का, एग्जीक्यूशन का। आप सब लोग करेंगे, सर को एक्चुअली दो पढ़ा 100% करेंगे, आज टाइम पास के लिए करेंगे। ये बहुत सिंसियर स्टूडेंट है सर, बहुत हॉनेस्ट है, बहुत पढ़ाई करते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। उनको सिलेबस पैटर्न सब पता था, उनको कभी भी पूछो आप, पैटर्न स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट हो गए। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम उनका। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ एक वर्ड में बता सकते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट उनको, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है एक का। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हो? अभी आप कैसे पढ़ते हो? सब टाइम टेबल बनाते पढ़ते हो या नॉर्मल पढ़ते हो? तो ये तो बहुत गलत है, तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सबसे बड़ा कोर प्रॉब्लम इनका यही है। हाँ, तो आप क्या करो, घर जाके कोई भी डिजिटल टूल लो या डायरी लो, उसमें लिखो लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान में क्या लिखोगे? मुझे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत ख़त्म करनी है। शॉर्ट टर्म प्लान में क्या रखोगे? मेरे को 4 दिन में ये टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। और जब आप सोने जाओ तो कंपेयर करो वेदर यू मार्क इट राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे आप जब करोगे स्ट्रेटेजी वाइज, देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट वेल। अगर आप हवा में कर रहे हो कि नहीं मुझे याद आएगा तब मैं पढ़ लूँगा, तो नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टाइम टेबल एंड स्ट्रेटेजी बनाना ही पड़ेगा सबको, ठीक है। तो वो आप डिजिटल टूल्स करो या फिजिकल जो नोटबुक आती है उसमें करो, ठीक है। सबको करना है, ये कंपलसरी है। ये आप किसी भी टॉपर से पूछ लो, सब ने किया है ये।
कि लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, और शॉर्ट टर्म में भी स्पेसिफिक कि आपने लॉन्ग टर्म में लिख दिया कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी मुझे कंप्लीट करनी है और एक FLT देना है। शॉर्ट टर्म में आप लिखोगे मुझे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करना है, फिर लिखोगे DPSP कंप्लीट करना है, फिर उस पर देखोगे कि आपने उस दिन DPSP कंप्लीट किया है नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा, तो उसके लिए एक स्पेयर डे रखता है कि अगर ये दोनों नहीं हो तो, या ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन बोला एक दिन में लक्ष्मीकांत खत्म करनी है, आपको पॉसिबल नहीं है ना। तो मेक इट प्लान वेरी केयरफुली जो इम्प्लीमेंटेबल हो, ठीक है। लेकिन एस्पायर भी करना है। आपको लग रहा है कि 5 दिन में कंप्लीट होगी लक्ष्मीकांत, आप सोचो 4 दिन में करनी है आपको, ठीक है।